A very good morning to all of you, and we are continuing chapter 4, the human development. And in previous video we had just completed the adolescence, last part of the adolescence, that's mean the substance abuse and the eating disorder, and the adulthood completely. And the remaining topic is the old age, which we will just started. So old age. Just when old age begins, it is not easy to determine. Traditionally, the age of retirement was linked to old age. Now that people are living longer, age of retiring from work is changing, and the cutoff point for the definition of old age is moving upward. Some of the challenges. Okay, so we are basically doing the old age. ओल्ड एज दैट्स मीन आ एज जहाँ पे हमारा ग्रोथ ना हो के बल्कि हमारा डिटॉर्शंस होता है इन सो मेनी एस्पेक्ट्स, इन द फिजिकल एस्पेक्ट्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द so many complications related to any kind of diseases, and the individual is suffering so many relationship issues related to their children and the अदर इंडिविजुअल्स. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो रिलेटेड होते हैं ओल्ड एज से. बेसिकली लोनलीनेस आफ्टर रिटायरमेंट, द लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर फैमिलीज मेम्बर्स एंड द डिपेंडेंस ऑन द नीड. ठीक है, नीड्स के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पे. दे आर लिविंग देयर लाइफ अलोन एंड इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ द आफ्टर द रिटायरमेंट दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर children. So this is all major concern in a old age, and death also. So ये दो major concern है which are remaining part of the chapter 4. So जब आप old age हो जाते हो, just when old age begins, is not easy to determine. Traditionally the age of retirement and was linked to old age. Now that people are living longer and age of retiring from work is changing, and the cutoff point for the definition of old age is moving upward. Some of the challenges and which the age have to cope with include retirement, widowhood, illness or death is the in the family. So the image of old age is changing in certain ways. Now there are people who have crossed 70 years of age and are quite active, energetic and creative. They are competent and are therefore valued by society in many walk of life. And in particular we have aged people in politics, literature, business, art and science. So the myths of old age as an incapacitating and therefore frightening phase of life is changing. ठीक है, फिजिकली आप डिटॉर्टेड होते हो दिस एज में, बट द डेफिनेशन इज कम्प्लीटली चेंजिंग इन द अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू सो मेनी पर्सपेक्टिव. ठीक है, कुछ कल्चर्स में ऐसा है कि जो ओल्ड एज है वो रिलेटेड टू द रिटायरमेंट समझा जाता है. रिटायरमेंट इज़ अ बिग इशू इन अ ओल्ड एज, and after retirement plans you are engaging in some activity, and after that you are free, completely free, you cannot have any work. सो उस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है, आपका जो लोनलीनेस रहता है वो जो चीज़ें डेवलप करता है वो सारी इश्यूज होते हैं. एंड बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रिटायरमेंट को ही एक इम्पॉर्टेंट इशू कंसिडर कर सकते हैं इन अ ओल्ड एज. बहुत सारी सोसाइटीज़ में, इवन इन अ इंडियन सोसाइटीज़ ऑल्सो, बहुत सारे पीपल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आफ्टर 70s भी उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही एक्टिव हैं. दे आर प्रोडक्टिव मेम्बर ऑफ द सोसाइटी टिल नाउ, एंड दे आर डूइंग देयर लाइफ इन अ वेरी हैप्पीएस्ट मैनर. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही जनरेट होती है. डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल परस्पेक्टिव, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. So there are lots of individual differences in the old age, but as general there are so many points which are related to it. So of course the experience of old age also depend on the socio-economic conditions, availability of health care, attitude of people, expectation of society and the available support system. So these factors play a vital role in a perspective on old age. Basically what is these? Depend on the socio-economical condition. If your socio-economic conditions are well and good, you have the financial support, you have enriching in a kind of money, so you have you fulfill your need by your own.
तो वहाँ पे आपका जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा. यू कैन नॉट डेवलप एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी. देन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, इफ़ यू आर इन अ पीरियड जहाँ पे आपको बहुत हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वहाँ पे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. बट एट द सेम टाइम कुछ इश्यूज़ तो रहते ही हैं, वो रहेंगे. एटीट्यूड ऑफ पीपल, दिस प्ले अ वाइटल रोल. ठीक है, एटीट्यूड, आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हो, अपनी बॉडी के चेंजेस को, अपनी मेमोरी के चेंजेस को लाइटली लेते हो, पॉजिटिवली लेते हो, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में चेंज होती है. अगर नहीं तो इट्स पे निगेटिव इम्पैक्ट, है ना. सोसाइटी में जो सपोर्ट सिस्टम है, सोशल सपोर्ट सिस्टम, वो किस तरह से रोल प्ले करता है, ये भी डिपेंड करता है. नाउ वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग अर्ली अडल्ट ईयर. देन फैमिली बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड बियॉन्ड that health become the most important issue in the person's life. Clearly, successful aging for much of our adult life focusing on how effective we are at work and how loving our relationship are in our family and how good our friendship are, how healthy we are and how cognitively fit we are. ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स डिसाइड करते हैं कि हम ओल्ड एज में किस तरह के प्रॉब्लम्स को सर्वाइव करेंगे, किस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी. बेसिकली कि हमारे पास कितना अच्छा रिलेशनशिप है, स्पाउस रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप. देन हम जिस टाइप का वर्क करते थे उससे हम कितने सेटिस्फाइड थे, हमने ओवरऑल लाइफ में क्या किया, उसका जो एक कॉन्शियस माइंडसेट होता है, हमारा जो एक व्यू होता है अपने वर्क के बारे में कि हमने लाइफ में बहुत कुछ गेन किया, तो सो वी आर सेटिस्फाइड. अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी लाइफ जो है वो वेस्ट हो गई, हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ सेव नहीं कर पाए, अच्छी परवरिश नहीं कर पाए बच्चों को, ऐसा व्यू अगर हमारा रहता है, ऐसा एटीट्यूड रहता है, तो हम बहुत सारी नेगेटिविटी को जनरेट करते हैं, बहुत सारी हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं अपनी लाइफ से बेसिकली. एंड लविंग रिलेशनशिप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुड फ्रेंडशिप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपके बैचमेट्स, आपके क्लासमेट्स इस टाइम तक आपसे कनेक्टेड है, सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करोगे. लॉनलीनेस नहीं आपको फील होगी, बिकॉज द चिल्ड्रंस आर इंगेजिंग इन देयर ओन वर्क. वो अडल्टहुड में हैं एंड वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, एंड यू आर फीलिंग लोनली. तो इफ़ यू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल, सो डेफिनेटली यू एंजॉय योर लाइफ बेटर. एंड द कॉग्निटिव एंड द फिजिकल हेल्थ, द कॉग्निटिव हेल्थ एंड द फिजिकल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर आप कॉग्निटिवली हेल्दी हो, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव वे में चल रही है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, थिंकिंग पॉजिटिव है, आप अच्छे से डिसीजंस ले पा रहे हो, मेमोरी इंटैक्ट है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी नहीं हैं, आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो रहेगी बट जो कोई मेजर इशू नहीं है, तो यू आर मतलब एक अच्छे स्मूथ फेज से आप इसको गुजरोगे. देन द retirement from active vocation life is a quite significant. Some people perceive retirement as a negative change and they consider it as a separation from an important sources of satisfaction and self-esteem. And other view it as a shift in life with more time to pursue their own interest. ठीक है. So how you take retirement, how you your view about the retirement. If you take it positively, this is the time when you मतलब आपने पूरा लाइफ अपना स्पॉइल कर दिया अर्निंग में सिर्फ, और आपने कुछ अपने इंटरेस्ट का नहीं किया. यू कैन नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन विथ योर फैमिली. सो अगर आप इस टाइम को पॉजिटिवली लेते हो कि अब तो मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, आई स्पेंड सो मच टाइम विथ माई फैमिली, आई डू माई इंटरेस्ट वर्क, आई डू माई हॉबीज़. ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसे पॉजिटिवली लोगे, आप एक्टिव रहोगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. और अगर इसे आप निगेटिवली ले रहे हो, आपका माइंडसेट निगेटिव है रिटायरमेंट के लिए, कि आप जो आपको मोर सेटिस्फेक्शन दे रहा था, जो मोर प्रोडक्टिव चीज़ें थी जो आप कर रहे थे, वो अगर आपके पास नहीं है, सो आपका जो सेल्फ इस्टीम है वो डिक्रीज़ हो जाता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो इशू. And it is seen that older adults who show openness to new experiences, more striving and achievement oriented behavior, prefers to keep busy and are better adjusted. The engagement is very important in a old age. If the old age peoples are engaged in a different kind of activity and they explore their life in a different way, so definitely they are more satisfied, they are more happy. And if they are feeling alone, they don't have want to try new things, then they suffer. Older adults also need to adjust to change in the family structure and new roles. ठीक है, ग्रैंड पेरेंटिंग रोल,
and that have to be learned. Children usually are busy in their career and families and may set up independent homes. So older adults may depend on their children for financial support and the overcome their loneliness after children have moved out. ठीक है, so इस loneliness को cover करने के लिए they do activities and the might trigger of feeling of hopelessness and depression in some peoples. In old age, feeling of loss of energy and dividing of health and financial assets leads to insecurity and dependency. So the elderly tend to look towards other to learn on and to care for them. The dependency is also major issue on the financial basis or in a physical basis. तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे. सो ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक चेंज लाती है उनके मेंटल लेवल पे, उनके कॉग्निशन लेवल पे. दे आर डिपेंडेंट. अभी तक उन्होंने पूरी लाइफ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव की है एंड एट दिस स्टेज उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने चिल्ड्रंस पे. तो कुछ लोग इसे पॉजिटिवली लेंगे, कुछ नेगेटिव लेंगे, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं ओल्ड एज में. The elderly tend to look towards other to learn and on and to care for them. And Indian culture favor dependency of elderly on their children for old age needs caring. In fact, parent is most oriented culture rear their children with the fond hope that they will care for them during old age. So Indian culture is a best culture जहाँ पे old age की caring एक religious perspective से connect किया जाता है इसको. सो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं. हालांकि बहुत चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में. सो बहुत सारे ओल्ड एज होम है जो प्रेफर करते हैं. डिफरेंट कल्चर का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जहाँ ओल्ड एज पीपल्स भी अलोन रहना पसंद करते हैं. वो अपने चिल्ड्रंस की लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं प्रेफर करते हैं. सो उनकी अलग अलग प्रेफरेंसेस रहती हैं. एंड important to give the elderly a sense of security and belongingness, a feeling that people care for them, especially in the time of crisis, and to remember that we all have to grow old one day. ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये हेल्प करते हैं एंड ओल्ड एज में. नाउ डेथ. So although death is more likely to occur in a late adulthood, death can come at any point in development, and the death especially of children and younger adults are often perceived to be more tragic than those of others. So in children and younger adults, death is more likely to occur because of accident, but in the older adult it is more likely to occur because of chronic disease. The death of a spouse is usually seen as the most difficult loss. ठीक है, मतलब आपका जो पार्टनर है अगर आप उसे खो देते हो ड्यूरिंग ओल्ड एज, तो ये आपके इस पीरियड पे बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैजिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, स्पेशली अपने स्पाउस को खो देना इस टाइम पे. और ये मतलब कह सकते हैं मेंटली बिल्कुल तोड़ देता है इस टाइम पे, और वो फिर चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाते. फिर उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर जाती है. Those left behind after the death of their partner suffer deep grief, cope with loneliness, depression, financial loss, and are also at risk of many health related problems. So widows by far outnumber widowers, and because studies show that women live longer than men and tend to marry men older than themselves. So during such time, support from children and grandchildren and friend can help the individual cope with the loss of spouse. तो इस टाइम पे अगर उनको अच्छा सोशल सपोर्ट मिल जाए उनके चिल्ड्रंस का, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस का, फ्रेंड्स का, डेफिनेटली वो इस लॉस को मतलब इससे कोप अप कर पाते हैं, इससे हैंडल कर पाते हैं. People in different culture view death differently. In the Gond culture in our country, it is believed that death is caused by magic and demon, and in the Tanala culture of Madagascar, natural forces are thought to cause that. Human development, as you have read in this chapter, thus help you to understand the influence of various factors in an individual's lifelong. So this is all about the old age. Old age एक ऐसा एज है जहाँ पे आप आफ्टर रिटायरमेंट का जो पीरियड होता है उसे आप ओल्ड एज के पर्सपेक्टिव पे कंसीडर कर सकते हो. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं. आप जो प्रीवियस लाइफ है उसको कैसे परसीव कर रहे हो. अगर आप एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ो तो उसमें जो लास्ट स्टेज है हमारी ओल्ड स्टेज में, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह से परसीव कर रहे हो अपनी प्रीवियस लाइफ को. अगर प्रोडक्टिव वे में देख रहे हो आप, से आपको लग रहा है कि यू हैव डन सफिशिएंट
things and you achieve something which are very valuable, so you are feeling you feel positive. And if you feel you are doing wastage of time, आपने कुछ नहीं achieve किया, then you feel so much negative. Then so many other factor, family support, children support and friends का किस तरह का behavior है, you are how your nature, your personality is also influencing here. आप productive personality हो, creative करना चाहते हो, अपनी hobbies को explore करते हो, you are engaging in a different kind of activity, you accept the changes in a society, you accept the responsibility change. ठीक है, आप पहले एक अथॉरिटी पर्सन थे अपने फैमिली के, नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर चिल्ड्रंस आर इन अथॉरिटी. सो इन सारे चेंजेस को आप कब कैसे लेते हो, पॉजिटिवली लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस पीरियड में. बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में इन अ ओल्ड एज एंड अल्टीमेटली डेथ. सो बेसिकली ओल्ड एज में जो डेथ होती है वो क्रोनिक डिजीजेस से सबसे ज़्यादा होती है, नेचुरल डेथ्स होती है. एंड डेथ्स को भी लेके अलग अलग कल्चर में अलग अलग पर्सपेक्टिव है, वो डिफरेंट वे में इसे एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, हमारे अब इंडियन कल्चर की बात करें तो हम मुक्ति के कॉन्सेप्ट में इसे एक्सप्लेन करते हैं कि आफ्टर दैट जो इंडिविजुअल है वो मुक्ति को प्राप्त हुआ. वो अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो वो आत्मा जो थी वो परमात्मा तक चली गई. इस टाइप के कॉन्सेप्ट हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट. द लास्ट स्टेज, ओल्ड स्टेज इज ऑल्सो डन. नाउ time to discuss some questions related to chapter 4. Let's start discussing the chapter questions related to this chapter. So let's start discussing some questions. First of all, NCERT questions which are given on your textbook. So what is development and how is it different from growth and maturation? In this you have to write down the concept of development and किस तरह से ये growth and maturation से different है, वो जो बॉक्स में आपके बुक में दिया है वो एक्सप्लेन करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट. देयर आर 6 assumptions in a लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव. सो ऑल एस्पेक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डेवलपमेंटल टास्क, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल. ठीक है, डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक स्किल के लिए, एक स्टेज के लिए कुछ स्किल्स डिसाइडेड होती हैं. वो उस स्किल्स को जब अचीव कर लेता है इंडिविजुअल तब वो नेक्स्ट स्टेज पे क्रॉस करता है. सो वही उसी को हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं. सो पर्पस ऑफ डेवलपमेंटल टास्क ये भी एक्सप्लेन करना होगा. व्हाट आर द टास्क, कौन कौन से टास्क हैं वो एक्सप्लेन करने होंगे इस सेक्शन में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज environment of the child has a major role in the development of the child. Support your answer with example. Basically the influence of environmental aspect, influence of cultural aspects explain करना है यहाँ पे with the evidence, with the examples. तो यहाँ पे उसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है क्यों सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सोशियो कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट. दिस इज ऑल्सो अ रिलेटेड क्वेश्चन, सेम आंसर ही होगा. नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस द कॉग्निटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ डेवलपिंग चाइल्ड. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग चाइल्ड तो यहाँ पे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करेंगे इन द इन्फेंसी एंड द चाइल्डहुड. ठीक है, तो एंड अगर इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम पियाजे की भी चारों स्टेजेस जो हैं बेसिकली पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में लेके हम सेंसरी मोटर स्टेज से लेके फॉर्मल ऑपरेशनल तक पूरी चारों स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे. नाउ अटैचमेंट बॉन्ड formed in childhood years have long term effect. Explain taking example for daily life. ठीक है, जिसमें अटैचमेंट बॉन्ड दैट्स मीन आपको जो इमोशनल पर्सपेक्टिव जो है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है वो एक्सप्लेन करना है चाइल्ड का इन अ चाइल्डहुड. जो अटैचमेंट डेवलप होते हैं, अटैचमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो एक्सप्लेन करना है. ठीक है. Now, what is adolescence? Explain the concept of egocentrism. So, what is the stage of adolescence? इसको एक्सप्लेन करना है कि ये दिस इज़ द ट्रांजिशन पीरियड एंड वहाँ क्या ईगोसेंटरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है मैंने आपको डिटेल में बताया है, वो एक्सप्लेन करना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेसिकली. What are the factor influencing the formation of identity during adolescence?
Support your answer with example. So in a socio-cultural development, there is a questions जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से इंडिविजुअल आइडेंटिटी डेवलप करते हैं, किस तरह से आइडेंटिटी फ्रेम होती है, एंड आइडेंटिटी क्राइसिस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल ऑन एंट्री टू अडल्टहुड. सो अडल्टहुड के क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं. बेसिकली मैरिज, जॉब एंड चिल्ड्रंस, उस कॉन्टेक्स्ट में इसे एक्सप्लेन करना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Next category of questions, NCERT questions are finished. So very short answer type questions. For example, explain the principle of heredity. What is genotype? What is phenotype? इस टाइप से questions आते हैं. Now what are the factors which affect our development? कौन कौन से factor है? Genetic factor, environmental factor, ये explain करना होता है. How does prenatal development get affected? यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो हैं. Now next is the newborn is not as helpful as you think. सॉरी, एज हेल्पलेस एज यू थिंक. ठीक है, तो ये यहाँ पे कमेंट वे में आपको बेसिकली प्री नेटल पीरियड के बाद के जो पीरियड है, इन्फेंसी पीरियड का थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. व्हाट आर रिफ्लेक्सेस? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम सम रिफ्लेक्सेस विच आर प्रेजेंटेड इन अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. सो अभी मैंने आज ही ऑनलाइन क्लास में भी आपको ये एक्सप्लेन किया है, ये एक्सप्लेन करना है इसमें. नाउ व्हाई एन अडल्ट थिंक डिफरेंटली फ्रॉम एन 8-year-old. तो यहाँ पे आपको पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से डिफरेंट है थिंकिंग हमारे अडल्ट इंडिविजुअल की और किसी चाइल्ड की. दिस इज़ द क्वेश्चन, वहाँ पे एक्सप्लेन करना है. व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस? दिस इज़ द कॉन्सेप्ट गिवन बाय जीन पियाजे. सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? यू हैव टू राइट डाउन. डिस्कस द मीनिंग ऑफ द टर्म अटैचमेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ टर्म अटैचमेंट? यू हैव टू राइट डाउन हियर. नाउ हाउ हेल्दी डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस. सो हेल्दी डेवलपमेंट किस तरह से डेवलप हो सकता है इन अ चाइल्डहुड स्पेशली, वो एक्सप्लेन करना है. एक वार्म अफेक्शनेट एनवायरनमेंट चाहिए, तो वहाँ से इस डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. दैन नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द चेंजेस विच अकर इन चाइल्डहुड. चाइल्डहुड में क्या क्या चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द मोटर स्किल्स डेट अकर ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड. तो क्या क्या मोटर, मैंने एक ग्राफ में बना है, बताया था मैंने आपको, ग्रास मोटर स्किल एंड द फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल एंड द फाइन मोटर स्किल्स, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है. देन द व्हाट इज एनिमिज्म. दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय जीन पियाजे. सो कॉन्सेप्ट एनिमिज्म का एक्सप्लेन करना है. व्हाट आर द टू फीचर ऑफ प्रपोर्शनल थाट. सो प्रपोर्शनल थाट का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी जीन पियाजे की ही थ्योरी से लिया गया है. इसमें बेसिकली ईगो सेंटरिज्म एंड सेंट्रेशन, ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन करने हैं. नाउ नेम द डायमेंशंस ऑफ चिल्ड्रंस सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं. बेसिकली सेल्फ, जेंडर एंड मॉरल. इन 3 डायमेंशंस के बेसिस पे चिल्ड्रन का सोशियो इमोशनल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर जेंडर रोल्स. इन अ बॉक्स देयर आर जेंडर रोल्स. इस तरह से जेंडर रोल्स परफॉर्म करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्ड्स मॉरल डेवलपमेंट. मॉरल डेवलपमेंट में क्या क्या कंपोनेंट रोल प्ले करता है. इन अ वेरी स्टार्टिंग स्टेज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड बैड, देन द पनिशमेंट एंड द रिवॉर्ड, एंड इन अ लास्ट स्टेज फाइनली द एसिमिलेशन ऑफ द वैल्यूज. नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म एडल्सेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडल्सेंस, द लिटरल मीनिंग, डेफिनेशंस, ये राइट डाउन करनी है यहाँ पे. नेक्स्ट इज नेम द एडल्सेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस. तो एडल्सेंस में क्या क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं. दे थिंक लॉजिकली इन अ वेरी लॉजिकल वे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सॉरी क्लास. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पियाजेस हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. सो ऐसी रीजनिंग जहाँ पे आप एक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करते हो, हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो, उसके बाद उसको रिवर्सिबल डिडक्ट करके भी एक्सप्लेन करते हो. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ नेम द कंपोनेंट ऑफ अडल्सेंस ईगोसेंटरिज्म. तो ईगोसेंटरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. नाउ डिफाइन द टर्म आइडेंटिटी. आइडेंटिटी से क्या अंडरस्टैंड करते हो आप. व्हाट इज आइडेंटिटी कन्फ्यूजन और द आइडेंटिटी क्राइसिस, इस टाइप से क्वेश्चन है. नेम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलसेंस. सो कल्चरल बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, फैमिली, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं. नेम द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एडोलसेंस.
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ UNDCP, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है। नेम सम ईटिंग डिसऑर्डर्स, सो एंड्रोक्सिया नर्वोसा एंड ब्लूमिया नर्वोसा। डू कॉग्निटिव एबिलिटीज़ चेंजेस ड्यूरिंग अडल्टहुड, तो अडल्टहुड में क्या क्या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं वो एक्सप्लेन करना है। नाउ डिस्कस द वेरियस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। सो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, वो एक्सप्लेन करना है। दैन द डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, फैक्टर्स बेसिकली 2 फैक्टर। Then they discuss the research of Erik Erikson in the area of development. एरिक एरिक्सन की थ्योरी मैंने आपसे शेयर की थी, उस थ्योरी के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अडल्सन्स, कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारे अडल्सन्स के पीरियड में। बेसिकली द प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये एक्सप्लेन प्यूबर्टी की एज जो होती है वहाँ पे वो एक्सप्लेन करना है, हार्मोनल चेंजेस। नेक्स्ट इज what psychological changes take place during adolescence, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या क्या चेंजेस होते हैं, सेक्शुअल आइडेंटिटी एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो एक्सप्लेन करना है। हाउ डू adolescents फ्रॉम देयर ओन आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। देन द डिस्कस इन डिटेल द टर्म डेलिक्वेंसी, हाउ कैन वी रिमूव डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, यू हैव टू राइट ऑन सम सजेशंस। नेक्स्ट इज़ हाउ सब्सटेंस अब्यूज़ अफेक्ट आवर डेवलपमेंट, सो किस तरह से सब्सटेंस अब्यूज़ जो होता है वो वर्ड्सली इफेक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन डिटेल अबाउट द इकोलॉजिकल मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सो दुर्गानंद सिन्हा का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन करना है। द अपर लेवल विजिबल लेवल एंड द सेकेंड विच इज़ सराउंडिंग लेयर। देन द डिस्कस द ब्रॉनफ्रेंड ब्रूनर्स कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो अ लॉन्गर क्वेश्चन। Now discuss some major reflexes in the newborn baby, ये भी है। रूटिंग है, मोरो, ग्रास्प एंड बिनिस्की। डिस्कस द ओल्ड एज इन डिटेल, सो ओल्ड एज का जो भी कॉन्सेप्ट है अभी मैंने जस्ट बताया वो पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू पॉइंट्स लाइक द इमेज ऑफ ओल्ड एज इज चेंजिंग, ओल्ड एज इज एन इशू ऑफ परसेप्शन एंड इशू रिलेटेड टू एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंस, फियर ऑफ डेथ, प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस। इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो ओल्ड एज को। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ द वेरियस एबिलिटी अकर इन द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, किस तरह की वेरियस एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, मोटर एबिलिटीज, सेंसरी एबिलिटीज़, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और द कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, पूरा आपको ही एक्सप्लेन करना है इन्फेंसी पीरियड का। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में किस तरह का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट एंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट द सेम टाइम द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड द मॉरल डेवलपमेंट ऑल्सो। सो इन डिटेल आपको चाइल्डहुड की पूरी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट डिटेल में बताने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द chapter 4 questions. Few questions are all also here. What is teratozin? Describe the effect of teratozin on prenatal development. This is the question. Next is what is chromosystem and how it is different from mesosystem and exosystem. Next is describe with example maturation and development. Discuss some emotional processes that influence development. How do the environment affect development? Explain in brief. Discuss duties of family members toward olds. Next is discuss any 2 major challenges faced by adolescents. So these are questions also are here which is important and इस type से questions आ सकते हैं इस chapter से. This is all about the chapter 4. So this is your chapter 4 completed. We had also discussed the questions. चैप्टर 4 विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इसमें स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट अंडरस्टैंड किया, देन द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डेवलपमेंट, जेनेटिक एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर और द कल्चरल फैक्टर एंड 2 मॉडल्स, then the different type of stages starting from the prenatal, infancy, childhood, adolescence, adulthood and the old age. These are the stages which we had discussed and all the aspects of development, especially physical development, motor development, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट. ठीक है, इन 4 डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में हमने ये सारे स्टेजेस को अंडरस्टैंड किया. दिस इज़ ऑल अबाउट
this chapter. Our next chapter is the sensory, attentional and the perceptual processes, which we will discuss in our next video. This is all about today. Thank you so much, class.